جی تو ناظرین، یہ ہمارا حسن و صفاق لڑکی کی لاسٹ ایپیسوڈ تو ویسے پہلے یعنی کہ ہم نے کر دینی تھی، لیکن بہت زیادہ لانگ ہو رہی تھی، کچھ ٹائم کی وجہ سے پوری نہیں دے پائی. تو اس کی جو بقایا حصہ جو رہتا ہے لاسٹ پارٹ کا، وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں. تو یہاں سے بس اس کا لاسٹ پارٹ ہے، شروع کرتے ہیں. حمزہ، عائشہ، آمنہ وہ تینوں خان ہاؤس میں داخل ہوئے. انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ گھر میں ایک بھی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا. وہ تینوں آگے بڑھی، گھر کے اندر داخل ہوئے. صوفے پر بیٹھی دانیہ کی طرف بڑھی. دانیہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی. آپ کون لوگ ہیں؟ اس نے ہراساں ہوتے ہوئے کہا. اس نے کافی دور ہو کر کھڑی ہوگی تاکہ اگر وہ کچھ کرے تو وہ جلدی سے بھاگ سکے. ہم لوگ آدمی سے ہیں، یہاں شیخ کی بیوی کو پکڑنے آئے ہیں. عائشہ نے بنا سوچے سمجھے سب بتا دیا. حمزہ اور آمنہ نے اس سے گھرنے لگے. تم میں ذرا عقل نہیں ہے عائشہ، اگر اس لڑکی نے کسی کو بتا دی تو ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا. آمنہ نے اسے کندھے پر زور سے تھپڑ چھڑا. عائشہ نے منہ پھیلایا. اس کا پھولا منہ دیکھ حمزہ نے کڑوے کریڈی کی طرح منہ بنایا. غبارے میں ہوا تھوڑی کم کر دو، کہیں اڑ نہ جاؤ. حمزہ نے ظفر کیا. آمنہ ان دونوں کو گھورنے لگی. آپ دونوں نے اپنی چونچ لڑانا بند کریں گے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں. آمنہ نے سختی سے دونوں کو دیکھا اور دانیہ کی طرف دیکھنے لگی، چپ چاپ کھڑی ان سب کی باتیں سن رہی تھی. آپ لوگ سچ میں آدمی سے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا. جی، ہم تمہاری ماں کو پکڑنے آئے ہیں. وہ شیخ کے ساتھ اس کالے کارنامہ میں اتنی ملوث ہے جتنا خود شیخ. عائشہ نے سنجیدگی سے کہا. یہ سن تھوڑی سی ریلیکس ہوئی. وہ میری ماں نہیں ہے، وہ میری ماں باپ اور چچی رضی کی قاتل ہیں. وہ اپنے کمرے میں جا کر پکڑ لو اسے. اس نے نفرت سے کہا. آمنہ اور عائشہ کو اس لڑکی پر بہت زیادہ ترس آیا. آمنہ نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے پیار سے اس کی پیٹھ سلا کر کہا اور اس کے سامنے کر کے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے. تم یہاں پہ بیٹھو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ویسے وہ کس کمرے میں ہے؟ اس نے سواری نظروں سے اسے دیکھا. وہ سامنے والے کمرے ہے. دانیہ نے دھیمی آواز میں کہا. اوکے، شکریہ سسٹر. عائشہ نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا. تینوں میں سے جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولنے لگی تو اندر سے بند تھا. یہ تو اندر سے بند ہے، اب ہم کیا کریں؟ آمنہ نے پریشانی سے کہا. یہ ہے نا ہمارے پاس، اسے کھولتے اور آتے ہیں. عائشہ نے ماسٹر کی اس کی آنکھوں کے سامنے کی اور دروازہ کھولنے لگے. دروازہ کھلتے ہی تینوں نے اپنی اپنی پستول ہاتھوں میں پکڑی اور اندر بڑھے. وہ جیسے ہی بیڈ پر ان تینوں کی نظر پڑی، ان کی آنکھیں پھیل گئی. حمزہ نے فوراً پیٹھ کر لی. وہ پہلی بار ایک عورت کو پکڑنے آیا تھا اور اسے بھی اس حالت میں دیکھ جب وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی. اس سے حد سے زیادہ شرمندگی ہوئی. شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. آمنہ اور عائشہ وہ شرمندہ سی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. کتنی گندی عورت ہے، ذرا شرم نہیں ہے اس میں. عائشہ نے نفرت سے آنکھیں گھما کر کہا. آمنہ پھیکی سی ہنسی سی اور اس نے ہوائی فائر کیا. فائر کی آواز سنتے ہی دونوں ایک دم اچھلے. مسز جہانگیر کو لگا شیخ ہے، لیکن ان دونوں لڑکیوں اور ایک لڑکے کو دیکھ کچھ ریلیکس ہوئی، لیکن اس کا چہرہ لال ہو گیا. شاید اسے شرم آ رہی تھی. وہ لڑکا بیڈ سے اٹھ کر باہر بھاگنے لگا، لیکن حمزہ نے اسے پکڑ بھاگنے نہیں دیا. اس کی ٹانگ میں گولی مار دی. وہ نیچے گر گیا. آمنہ نے آگے بڑھ کر مسز جہانگیر کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا. ذرا شرم نہیں ہے تم میں؟ کچھ اپنے شوہر کا ہی لحاظ کر لیتی. کیا شیخ تیری خواہش پوری نہیں کرتا جو اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ آمنہ نے 2 اور تھپڑے اس کے چہرے پر جڑے. وہ آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہی تھی. اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا. تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ اس نے چہلاتے ہوئے کہا. بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی. اس نے ایک ناز بیان نائٹی پہن رکھی تھی. یہ دیکھ حمزہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. عائشہ نے چور نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا. بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں، عائشہ نے اڑاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر ہتھکڑی لگانے کی کوشش کرنے، لیکن وہ اس قابو میں نہیں آ رہی تھی. یہ دیکھا. آمنہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور عائشہ نے ہتھکڑی لگائی. عائشہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے گرد پھیلایا. اسے پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی. حمزہ نے انہیں پیچھے سے دیکھا تو اس کی نظر عائشہ کی پتلی کمر پر ٹک سی گئی. اس نے پینٹ کے ساتھ بلیو شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ بہت تنگ تھی. حمزہ نے فوراً اپنی زنجیریں پھوڑی. اس لڑکے کو بازو سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور گھسیٹتے ہوئے لے گیا. ان دونوں کو گاڑی میں ڈالنے کے بعد دانیہ کو ساتھ لے وہ چلے گئے اور ابھی راستے میں ہی تھے جب عائشہ کے موبائل پر انمول کی کال آئی. ہاں انمول، ہم نے پکڑ لیا اور دانیہ ہمارے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے، میں دانیہ آپ کے گھر لے کے آؤں گی. اس نے انمول سے بات کرتے ہوئے دانیہ کو دیکھا اور اس کے ساتھ سوچوں میں گم بیٹھی تھی. برہان نے جہانگیر خان اور اس کی بیوی کو ایک ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا. اس کمرے میں ہر طرح کے بچھو تھے. برہان خود تو دونوں کو خون آشا نظروں سے دیکھنے لگا. دونوں اپنے جسم پر چڑھنے والے بچوں کو خود سے دور جھٹک رہے تھے. شیخ تجھے ایک بات بتا دوں، تیری بیوی کو آج ہم نے ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ عیاشی کرتے پکڑا ہے. یہ سنتے ہوئے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا. مسز جہانگیر ڈر کے اس سے دور ہوئی. یہ تیری پیٹھ پیچھے ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی.
बरहान ने इसे भड़काने के लिए फिर से अय्याशी पर जोर देकर कहा। इसकी कहने की देर थी, जहांगीर खान ने आगे बढ़कर अपनी बीवी का गला दबाना शुरू कर दिया। बरहान ने जैसे ही मर्द देखा और जलान के पास जाकर बैठ गया। तूने ऐसा क्या कहा जो अपनी बीवी को मार रहा है? इसने इन दोनों को देखते हुए कहा, वही जिससे एक शोर अपनी बीवी को मारने से भी देर नहीं करेगा। इसने एक नजर शेख को देखा और शान से टांग पर टांग रखकर जलान को देखने लगा। इसने तो अपनी बीवी को मार दिया यार। जलान ने आंखें फाड़े शेख को देखकर कहा। अपनी बीवी का गला दबाने के बाद आराम से बैठा था। बिच्छू इसे काट रहे थे पर वो ऐसे बैठा था जैसे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। यही तो मैं चाहता था। अब कुछ देर में बिच्छू के काटने से ये मर ही जाएगा, वो कहते हुए उठकर जाने लगा। फिर रुक पलटा। पलट कर जलान को देखा। वो आंखें फाड़े शेख को देख रहा था। अब बस कर दे, इसे देखने से तेरा कोई फायदा नहीं होगा, चल मेरे साथ। ये सुन इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए इसे देखा। चलते हैं, पहले बस मैं देख रहा था कि इतनी बिच्छुओं के कांटे से शेर कैसे मरता है। वो कहते हुए उठकर इसकी तरफ आ बढ़ा और दोनों वहां से चले गए। शेर बिच्छुओं के काटने से तड़पने लगा। कुछ ही देर में बेजान होकर एक साइड पर गिर गया। इस रूम में बिच्छुओं के साथ दो लाशें पड़ी थी। जहांगीर खान और मिसेस जहांगीर को इनकी की सजा मिल चुकी थी। इन्होंने जो दूसरों के साथ किया, इनके साथ इससे भी बुरा हुआ। मिसेस जहांगीर जिसने अपनी जेठानी को जहर देकर मारा और अपने शौहर के हाथों मरेगी, और जहांगीर खान जिसने ड्रग्स से काफी लोगों को जिंदगी बर्बाद की, वो बिच्छू के जहर से तड़प तड़प कर मर गया। और ये सब कुछ अनमोल ने यतीम खानों और फलाही इदारों को मचा दिया ताकि इस गलत तरीके से कमाए गए पैसे की नेक काम में लग जाएं। अनमोल ने मिशन की कंप्लीट होने की खुशी में घर में सबको पिज्जा पार्टी दी थी। सब लड़के और लड़कियां वहां मौजूद थे और मजे से पिज्जा खा रहे थे। यार आमना, ये साइमा मुझे काफी दिनों से नजर नहीं आई, कहाँ है वे? वो मेरी बातों को तो पहले तो इसने कभी सीरियस नहीं लिया, जो अब इसने यहाँ आना ही छोड़ दिया। अनमोल की बात सुन बरहान ने पहलू बदला। जयान और हमजा ने चोर नजरों से इसे देखा। वो अली के पास चली गई है। जंगली जानवर इसकी हड्डियां भी हजम कर चुके हैं। तलान ने बरहान के कंधे पर हाथ रखकर अनमोल से कहा। बरहान ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। हो जाता था इस बारे में कोई भी अनमोल को न बताए। ये सुनकर इसे बुरा लगता और बरहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्या हुआ था साइमा को? अनमोल ने संजीदे से तलान को देखा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अनमोल साइमा ही थी जिसने आपको किडनैप करवाया था और आपको ड्रग्स भी इसने दी थी, इसलिए बरहान भाई ने इसे गुस्से से मार दिया। आशा सर झुकाई आहिस्ता आवाज में बोली। ये सुन अनमोल का चेहरा लट्टे की मान सफेद हुआ। इसके चेहरे के बदलते रंग देख बरहान को परेशानी लाहक हुई। अनमोल, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने इसे मार दिया तो सॉरी, पर मैं क्या करता, इसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी। ये बात मुझसे सही नहीं हुई, सहन नहीं हुई, मैंने इसे मार दिया। इसने अनमोल के चेहरे की तरफ देखती हुए नरमी से कहा और चुपचाप इसकी तरफ देख रही थी। तुम सोच कर देखो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती अनमोल? मैं भी शायद यही करती, पर मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि वो मुझसे इतनी नफरत करती थी जो मुझे मारने से भी गुरेज नहीं किया। अनमोल ने अफसरदा होकर कहा। सब संजीदगी से देख रहे थे। आशा ने इसने की खुनी मारी। इसने चुप कर इसकी तरफ देखा। यार अनमोल, इसे जो तुम्हारे साथ किया ना, इसकी सजा मिलेगी। अब इस बात को भूल जाओ, हम कुछ और बातें करते हैं। वैसे जलान भाई की 2 दिन बाद शादी है, पर इस बंगले को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ शादी है। आशा ने बातों में अनमोल का ध्यान एकदम चेंज कर दिया। अनमोल ने मुस्कुराते हुए इस बंगले को देखा। कि तुम सही कह रही हो, मैं कल ही बंगले को शादी के घर की तरह डेकोरेट करवा दूंगी और कल हम सब शादी की शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। पर ये बात सुनने शर्म से सर झुका गई। इसे शर्माता देख जलान को इस पर प्यार आया। अब ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था कि कल मेरी शादी की शॉपिंग हो गई और 2 दिन बाद मेरी शादी। जलान ने ऊपर देखते हुए खोए अंदाज में कहा। इसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। एक और खुशी की बात है तेरे लिए, परसों हम तुझे हल्दी और मेहंदी भी लगाएंगे। बरहान ने हंसी रोकते हुए उसके कान के पास जाकर कहा। यह सुनते ही जलान ने एकदम ख्वास बाहता होकर सब की तरफ देखा। नहीं, मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा। हाथों को दाना में हिलाते हुए सोफे से उठ कर खड़ा हो गया। बुरा सा मुंह बनाने लगा। क्यों नहीं लगवाएंगे भाई, तेरे तो बच्चे भी लगवाएंगे और हम तुझे ऐसे ही हल्दी लगाएंगे। हम तो नहीं कहते हुए आसिम के चेहरे पर हाथों से मसाज किया। इसे ऐसे करता देख जलान के मुंह पर लौट लिया। आसिफ ने हमजे के हाथों को दूर झटका। मेरे चेहरे के इंजर पंजर ढीले कर दिए हैं तुमने। आसिफ ने चेहरे को सुलाते हुए इसे आंखें दिखाई। सब लड़कियां मजे से लड़कों की नोकझोंक देख रही थी। दानी भी थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी। अनमोल बरहान की तरफ चेहरे की तरफ देखने लगी। वो हंसते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। जैसे ही बरहान ने इसे देखे, इसने फौरन अपनी नजरें फेर ली। दूसरे दिन सब लोग शॉपिंग पे गए। आशा, या तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? 1 घंटे पूरी शॉपिंग मॉल में घूमने के बाद अनमोल ने क्लस कर कहा। मैंने और आमना ने एक जैसे ड्रेस लेनी है। तो फिर तो लो, मेरी तो जान छोड़ो ताकि मैं परी के लिए भी शॉपिंग कर सकूं।
इसने कहते हुए आसपास देखा। मम्मा, आंटी और दानिया कहाँ गई? इसने पूछा। वो किसी और शॉप में की। आमने ने कहा, अच्छा ये परी भी मम्मा के साथ है ना? इसने आमने से पूछा, जलान भाई के साथ होगी। वो भाई के साथ है, मुझे इसके पास जाना होगा। वो कहते हुए जाने लगी। आशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने हैरानी से पलट कर उसे देखा। यार कौन सा जलान भाई? कोई जिन है जो इसे खा जाएंगे? वैसे भी परसों इनके दोनों की शादी है, इसके बाद वो दोनों एक साथ ही रहेंगे। तू अब क्यों नहीं इन्हें शॉपिंग करने दो? आयशा ने ऐसे कहा। अनमोल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चली गई। ये हमेशा परी की बॉडी गार्ड बनी रहेगी, इसकी शोर से इसे बजाती रहेगी। आपने इसे जाते देखा कहा और दोनों अपने लिए ड्रेस लेने लगी। हेलो सिस्टर। फरहान के आवाज से उन दोनों ने चुन कर इधर। भाई आप भी अपनी शादी की शॉपिंग करने आए हैं ना? हम जानती हैं जलान और परी की शादी के साथ आपकी और अनमोल की भी शादी हो रही है। आशा ने आमना को कंधे मारते हुए फरहान को कहा तो मुस्कुराने लगा। वैसे मेरी बीवी कहाँ है? इसने आसपास देखते हुए पूछा। वो अपनी भाभी को बाई से बचाने लगी हैं। आमना ने हंसते हुए कहा। अपनी बीवी की इस हरकत के बारे में जानकर गहरा मुस्कुराया। वैसे जब इसे पता चलेगा कि हम इसकी भी शादी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। आशा ने कहा। आप भी हमारे साथ इस प्लान में शामिल है ना? शादी की पहली रात वो आपकी भी हड्डी पसली ये करेगी। आमने ने हंसते हुए कहा। आयशा और इसने ताली बजाई। और मैं देख लूंगा, आप लोग बस ध्यान रखना, इसे इस बारे में बिल्कुल भी पता ना चलना चाहिए। फरहान ने कहा। आप टेंशन मत लें भाई, इसे इस पता नहीं चलेगा। आशा ने कहा। ओके अब मैं चलता हूँ शॉपिंग करने, तुम अपनी शॉपिंग करो। इसने संजीदगी से कहा और अपने और अनमोल के लिए शॉपिंग करने चला गया। आयशा और आमना अपने लिए शॉपिंग करने लगी। अनमोल जलान और परी को ढूंढ रहे थे। जब इसे बाजू से पकड़ किसी ने दीवार से लगाया। अनमोल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, लेकिन फरहान को देख इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप हैं? मुझे लगा तो पता नहीं कौन है। मैं तो आपकी हड्डी पसली एक करने वाली थी। अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो प्यार से इसके चेहरे के नक्श नक्श को देखने लगा। इसकी नजर इसके होठों पर जम सी गई। तुमने होठों पर लिपस्टिक लगाई है? इसने संजीदगी से पूछा। हाँ हल्की सी लगाई थी। अनमोल ने कहा। आइंदा मत लगाना, मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी की नजर लगे। इसकी बात सुन अनमोल ने सिकुड़ा। भला थोड़ी सी लिपस्टिक लगाने से किसे नजर लग सकती है? तुम्हें लग सकती है। बुरहान ने मनी हेल्थ लहजे में कहा। इसके होठे से अंगूठे से लिपस्टिक उतार दी। ये क्या किया आपने? मुझे होठों पर खुश्की हो रही थी इसलिए लिपस्टिक लगाई थी। अनमोल ने सिकुड़ा। मैं लिपस्टिक उतार दी है, पर फिर भी तुम्हारे होठे गुलाबी क्यों लग रहे हैं? जरा ने इसके होठों को गौर से देखा। क्योंकि मेरे होठों का कलर ही पिंक है, अनमोल ने कहा। बुरहान अनमोल के होठों पर अपना अंगूठा रब करने लगा। तुम्हारे होंठ कितने सॉफ्ट और प्यारे हैं। बुरहान ने इसके होठों को देखते हुए कहा। आपने ना किया मेरे होठों पर किताब लिखनी है। चलो शॉपिंग करने आए हैं तो शॉपिंग करो। अनवर ने इसके अच्छे हाथ से झाड़ कर चली गई। बुरहान मुंह खोले इसे पीछे से देखने लगा। तुम्हारी जुबान मेरे सामने कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। शादी की पहली रात में जुबान बंद करूंगा। बुरहान ने अनमोल को पीछे से देखते हुए दिल में सोचा। शॉपिंग करने लगा। शायद वो भूल रहा था अनमोल शादी के दिन इसकी बैंड बजाने वाली थी। वो दोनों काफी देर से लहंगा देख रहे थे, पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा नहीं। आज तो परी चुपचाप इसके साथ थी और जलान भी जो भी पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है वो कहती जो तुम्हें पसंद है ले लो। तुम अपने लिए कैसा लहंगा लेना चाहोगी? जलान ने परी से पूछा। जो आपको पसंद आए वही ले लो। परी ने धीमी आवाज में कहा। यह सुन जलान का दिल की अपना सर पीटे। परी तुम्हारी ये बात सुन सुनकर अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं सब कुछ अपनी पसंद से क्या लूंगा? इसने कहा। परी बेचारी बड़ी मुश्किल से इसके साथ चल रही थी। अगर इसका बस चलता वो भाग जाती। इसने परी के लिए ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा लहंगा जिसकी में गोल्डन काम हुआ था और अपने लिए ब्लू शेरवानी ली। इसके बाद इसने ज्वेलरी और बहुत कुछ लिया। परी इसके साथ चुप चुप चल रही थी। इसके दिमाग में इस रात जलान की हुई बातें गूंज रही थी। फरहान ने अपने लिए ब्लैक डिनर सूट लिया और अनमोल के लिए ब्लैक कलर का लहंगा जो कि बहुत ज्यादा प्यारा था और बहुत ही ज्यादा हैवी था। इसकी मैचिंग ज्वेलरी और भी बहुत कुछ लिया। दूसरे दिन माइयों थी। बंगले के गार्डन में माइयों का फंक्शन रखा गया। अनमोल ने अपने सब जानने वालों को बुलाया था और जलान, शगुफ्ता बेगम, कबीर के भी बहुत सारे रिश्तेदार शामिल थे। परी और जलान को गेंदे के फूलों से सजे झूले पर बैठा दिया गया था। सब बड़ों ने इन्हें हल्दी लगाई। अब अच्छा पार्टी की बारी थी तो हमजा ने पकड़ा हल्दी का बाउल और सारा का सारा जलान के सिर पर डाल दिया। फरहान अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था। इसके बालों से पानी की तरह हल्दी टिपक रही थी। गुस्से से हमजा को देख रहा था। सब जानते थे जलान को हल्दी से चिढ़ होती है, लेकिन हमजा ने ये जानबूझकर किया था। सब जलान पर हंस रहे थे। परी को भी हंसी आ रही थी। इसने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, फूलों को जेवर पहने, बल्कि हल्के मुल्क मेकअप के साथ सचमुच की परी लग रही थी। अमनोर के पास में खड़े मजे से ये सीन देख रही थी। इसने पीले कलर का शरारा पहन रखा था, हल्का सा मेकअप किए, नफीस सी ज्वेलरी पहने बारबी डॉल लग रही थी।
जलान अपने सर पर हाथ मारकर हल्दी को अपने हाथों से लगाया और उठकर आगे बढ़ा। हमजा के चेहरे पर हल्दी लगाने के लिए वो साइड पर हो गया और बरहान को पकड़कर अपने सामने कर दिया। जलान के हल्दी से भरे हाथ बरहान के चेहरे पर लग गए। बरहान ने बुरा सा मुंह बनाया, इसे खुद से दूर देखा मारा और मुंह धोने चला गया। जलान ने हमजा को खा जाने वाली नजरों से देखा और परी के साथ जाकर बैठ गया। अनमोल ने बरहान को अंदर जाता देखा तो इसके पीछे चली गई, पर इसे वो कुछ न कहीं नजर नहीं आया। वो आसपास देखते हुए आगे बढ़ी। बरहान जो इससे अपने पीछे आता महसूस कर चुका था, दीवार के साथ टेक लगाए छुप कर इसे दिख रहा था। वो आगे बढ़ा, अनमोल का हाथ पकड़कर इसे खींच कर कमरे में ले गया और इसके साथ खींचते चले गई। कमरे में पहुंचकर बरहान ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। अनमोल आंखें फाड़े से दिख रही थी। आपने चेहरा नहीं धोया? अनमोल इसके हल्दी लगे हाथ को देखकर बोली। कैसे हल्दी उतार देता जब मुझे अपनी प्यारी सी बीवी को हल्दी लगानी थी, इसने कहते हुए अनमोल के गालों से अपने हल्दी लगे गालों को रगड़ा और अनमोल के चेहरे को देखे। इसके गालों पर हल्दी लग चुकी थी। इसने प्यार से अनमोल की नाक चूमी। आपने मुझे हल्दी क्यों लगाई? इसने हैरानी से पूछा। मेरा दिल किया इसलिए, इसने कहते हुए दोबारा इसके नरम मुलायम गाल पर अपने गाल रगड़े। अनमोल को इसकी बर्ड की चुभन अपने गालों पर महसूस हो रही थी। बस करें अब, क्या अपनी बर्ड से मेरे गालों को जख्मी कर देने हैं आपने? अनमोल ने मुंह फैलाते हुए कहा। बरहान ने इसके फूले हुए चेहरे को देखा, नजमी से इसके होठों को छुआ, इसे छोड़ा एकदम कदम दूर होकर खड़ा हो गया। अनमोल अभी मुंह फुलाए इसे ही देख रही थी। तुम इतनी प्यारी क्यों हो अनमोल? बरहान ने इसके गाल खींच कर कहा। इसके ने बरहान के हाथों पर थप्पड़ मारा। पर आप बिल्कुल प्यारे नहीं, आप कभी मेरी नाक खींचते हैं कभी मेरे गाल, इसने अपने गाल सुलाते हुए कहा। बरहान ने इसे देखते हुए गहरी सांस लिया। जाओ जाकर मेहंदी लगवा, तुम्हारे खूबसूरत हाथों पर मेहंदी बहुत प्यारी लगेगी। बरहान ने इसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। मैं मेहंदी क्यों लगवाऊं? जो भी है यहाँ कर रहे हैं ये करो ना करो, वैसे जैसे मेरी शादी हो रही है, मैंने दुल्हन थोड़ी बनना है जो ये सब करूं। और अनमोल ने जलकर कहा। यह सुन बरहान के चेहरे पर साया सा लहरा। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि इसकी भी शादी हो रही है? तुम्हारे हाथ पर मेहंदी दिखो, पर तो मेरी बात मानती कहाँ हो। जाओ, जो मर्जी है काय करो। फरहान ने नाराजगी से चला गया। वो समझ चुका था अगर अनमोल ने कुछ करवाना है तो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। और होंठों को दांतों में दबाई खड़ी रही, फिर बाहर चली गई। इसने सोच लिया तो वो मेहंदी लगवाएगी। परी को मेहंदी लग चुकी थी, अब अनमोल को मेहंदी लग रही थी। अनमोल मुंह बनाते हुए मेहंदी लगवा रही थी। इसे मेहंदी लगवाते देख बरहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेहंदी के लगते ही अनमोल ने दानिया को देखा और इसके पास बैठी थी। मैं थक गई हूँ, जाकर हाथ पाँव धो लूं, इसने मासूम से पूछा। नहीं अनमोल, आप इसे अभी नहीं धो सकती, खुश्क होने के बाद धोना, दानिया ने कहा। यह सुन अनमोल ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। यह मेहंदी भी जान का अजाब है, इसने अपने हाथों की मेहंदी देखकर कहा। आयशा दानिया को अपने कमरे में लेके गई, वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अनमोल 15 मिनट बैठ कर भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। इसने मासूम सा चेहरा बनाकर दानिया और आमना को देखा। प्लीज अब मैं जाकर सो सकती हूँ, मैं थक गई हूँ और मेरी मेहंदी भी सूख गई है, इसने अपने हाथ आगे करके दिखाते हुए कहा। पर हाथ दूर बैठा इसे देख रहा था। इसकी पेशानी में बल पड़े हुए थे। इसने अनमोल को मेहंदी का इसलिए कहा था कि इसे मेहंदी पसंद थी, पर अब अनमोल बहुत ज्यादा थक चुकी थी। थकावट इसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बैठा देख रहा था। इसका दिल तो कर रहा था अनमोल को वहां बिठाकर अंदर कमरे में लेके जाए। आमना और दानिया इसके चेहरे पर थकावट देखते हुए इसी कमरे में ले गई। अनमोल हाथ पाँव धोने के बाथरूम में जाने लगी तो आमना ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। अभी नहीं धोना अनमोल, वरना कलर अच्छा नहीं आएगा, कल सुबह धो लेना, अभी सो जाओ। आमना ने संजीदगी से कहा। अनमोल इससे घूरने लगी। उफ, क्या मुसीबत है ये, इसने चिल्लाते हुए कहा और हाथों को आस पास रखे बेड पर लेट गई। दानिया ने इस पर कम्बल डाला और दोनों कमरे से निकल गई। अनमोल को लेटते ही गहरी नींद आ गई। आज शादी का दिन था। शादी शाम को थी, अभी वो दोपहर हो रही थी। सब लड़कियां पार्लर लेके जाने वाली थी। अपना जरूरी सामान बैग में रख रही थी, लेकिन अनमोल अभी तक नहीं उठी थी। बेटा जाकर अनमोल को उठाओ, इसने भी तुम लोगों के साथ पार्लर जाना है। शगुफ्ता बेगम ने आमना से कहा। आमना, तुम परी का सामान बैग में डालो, तुम लोग आसम भाई के साथ पार्लर चली जाओ, मैं अनमोल को उठा कर लाती हूँ, हम दोनों खुद गाड़ी में आ जाएंगे। आशा ने कहा और अनमोल को जगाने इसके कमरे में चली गई। अनमोल कंबल ओढ़े मजे से सो रही थी। आशा ने इसे घूर कर देखा और इसके ऊपर से कमर खींचा। कौन है? वो आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उठ के बैठी। मैं हूँ, जल्दी उठो, मैं तैयार होने पार्लर में जाना है, आशा ने कहते हुए इसे बाजू से पकड़कर छिछोड़ा। अनमोल ने फौरन नींद से भरी आंखें खोल कर इसे देखा। तुम लोग चले जाओ, तैयार होने में खुद तैयार हो जाऊंगी, वो कहते ही बेड से उतरकर बाथरूम में जाने लगी। हाँ, पता है मुझे, तुम्हारे मेकअप का बनाने वाली इंडस्ट्री के मालिक हो और मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाती हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ।
हम दोनों साथ ही पार्लर जाएंगे। आशा ने बात खत्म कर दी। अनमोल ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फ्रेश होने चली गई। वो नहा कर बाहर निकली। इसने ब्लू जीन्स के साथ ब्लू हीरो लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी। इसने बालों को ड्राई किया और फिर आशा की तरफ मुतवज्जो हुई। आराम से बैठी से दिख रही थी। वैसे अनमोल तुम बगैर मेकअप के भी कमाल लगती है, लेकिन शादी पर मेकअप करना ज़रूरी है। आशा ने उठकर इसकी तरफ बढ़ी और इसके हाथ को पकड़कर देखने लगी। अनमोल के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत ज्यादा गहरा आया था। इसके हाथों पर मेहंदी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आया है, इसके मतलब भाई सच में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आशा ने इसे छेड़ते हुए कान मोड़े से गोने लगी। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे छेड़ो मत। इसने संजीदगी से कहा। अपना पर्स उठाए कमरे से बाहर निकली। इसके जाते ही आशा ने लंबी सांस ली। आज हम सब की बैंड बजने वाली है, वो कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। वो नीचे आई तो शगुफ्ता बेगम इसके लिए जूस का गिलास लेकर आई। अनमोल ये लो जूस पियो, फिर पार्लर चली जाना, इन्होंने प्यार से कहा। अनमोल ने इनकी तरफ देखते हुए जूस का गिलास पकड़ा और 2-3 घोंट पीने के बाद इन्हें वापस कर दिया। अनमोल कुछ तो पिया होता, भूख से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। इसने कहते हुए एकदम अपने सर पर हाथ मारा। मम्मा मेरा वो ड्रेस कहाँ है जो मैंने आज पहनना है, आपके पास था ना? इसे सवाली नजर से ने देखा हुआ एकदम गड़बड़ाई। अनमोल जिस ड्रेस का पूछ रही थी वो तो इनके पास पड़ी थी, लेकिन वो तो अनमोल ने नहीं पहनी थी। इसने तो ब्राइडल ड्रेस पहनी थी जो बरहान पार्लर में पहुंचाने वाला था। अनमोल वो मैंने पहले ही हमने के हाथ पार्लर भेज दिए है, अब तुम जल्दी से जाओ। अच्छा तुम्हें पार्लर जाने से इनकार न कर दूं, इसलिए मेरा ड्रेस आपने पहले ही भेज दिया। पेन अच्छा बनाया है आप लोगों ने। इसने कहते खुश हो गई। उफ्ता बेगम और आशा को देखकर गुर्रा। ठीक है आप लोग भी क्या याद करेंगे, जा रही हूँ मैं पार्लर से तैयार होने। इसने कहते हुए बिशान में बल लिए आशा का हाथ पकड़ा उसे खींचते हुए अपने साथ लेगी। इससे जाते ही शगुफ्ता बेगम ने लंबी सांस ली। आसम की माँ आसफा बेगम को देखा जो मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। एक पहाड़ तो सड़क गया, पर जो आगे होने वाला है वो सोचकर मुझे घबराहट हो रही है। शगुफ्ता बेगम ने इनके साथ बैठती कहा, आप टेंशन मत लें बहन, वो दुल्हन बनी होगी तो मेहमानों के सामने कोई वायला नहीं करेगी। इनकी बात सुन शगुफ्ता बेगम ने संजीदगी से दिन देखा। आप नहीं जानती मेरी अनोखी बेटी को, चाहे जितने भी लोग हों सबके सामने हम सबकी चमड़ी उतार देगी। इन्होंने छड़छड़ी लेकर कहा, आप टेंशन मत लो और अच्छा सोचो, हो सकते है वो कोई रद्द अमल ना दे। मैं भी यही चाहती हूँ बहन, अल्लाह करे ऐसे ही हो। शगुफ्ता बेगम ने कहा। शादी हाल में सब लोग आ चुके थे। दूल्हा साहब जलान और बरहान वो भी तैयार होकर आ चुके थे। दोनों अरबी शहजादे लग रहे थे। जलान ने ब्लू शेरवानी पहन रखी थी, बरहान ने ब्लैक डिनर सूट। दोनों बाकमाल लग रहे थे। सबकी नजरें इनकी तरफ थी। अभी दुल्हन स्टेज पे नहीं आई थी, वो पार्लर से आने के बाद ब्राइडल रूम में बैठी थी। परी बीरू लहंगे में मेकअप किए, हल्की से झूले पहने कांच की गुड़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे ही जलान इसे देता इसे दुनिया भूल जाती। अनमोल ब्लैक लहंगे में मेकअप किए, जूली पहने आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। आशा तो इसके आवारी जा रही थी। वो 2 बार इसकी और परी की नजर उतार चुकी थी, बड़ी औरतों की तरह। अनमोल के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो गुस्से से सब लड़कियों को देख रही थी। इसने अभी तक अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था, जिसकी वजह से सब सुकून में थे। लेकिन ये सुकून कब तक रहना था ये इन्हें पता नहीं था। जब दुल्हन को स्टेज पर लेकर जाने का वक्त हुआ, परी को आमना और दानिया लेकर चली गई। अनमोल खुद उठकर जाने लगी। आशा ने इसका लहंगा पकड़ना चाहा। अनमोल ने साफ नजरों से उसे देखा, आगे से हाथों से लहंगा पकड़ा, अकेले ही चली। आशा भागकर इसके हम कदम हुई। परी आमना और दानिया के साथ जैसे ही चलते हुए स्टेज की तरफ आई, सब लोग आंखें फाड़े इसे देखने लगे। जलान इसे देखते उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़े इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की और अपने साथ बैठाया। फरहान अब सामने देख रहा था इसकी दुल्हन कहाँ रहेगी। इसी वक्त इसे अनमोल आती दिखाई दी। इसकी नजरें इस पर उठी तो पलटना भूल गई। वो आंखें फाड़े इसे देखने लगा। वो आज इस पर बिजलियां गिरा रही थी। वो अकेली आगे से लहंगा उठाए कॉन्फिडेंस से चलती आ रही थी। इसकी नजरें सीधे बरहान पे टिकी थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब लोग मुंह खोले से देख रहे थे। ब्लैक कलर के लहंगे में सचमुच की हूर लग रही थी। फरहान इसकी तरफ उठी नजरों को बेगम अच्छे से समझ रहा था। वह जैसे ही स्टेज के पास पहुंची, फरहान ने आगे बढ़कर इसका हाथ अपने पकड़ा और दूसरे हाथ से इसका लहंगा पकड़कर इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की। इसे अपने साथ सोफे पे बिठाया और प्यार से अनमोल की तरफ देखने लगा। मेरी नजरों को थोड़ा लगाम दो, अपनी नजरों को थोड़ा लगाम दो शोहर, वरना ये सलामत नहीं बचेंगी। अनमोल ने धीमी और सह लहजे में कहा। फरहान ने सुनकर फौरन अपनी नजरें फेरी। इसे अनमोल से कोई विद नहीं था। अनमोल तुम इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत हो यार, मुझे लग रही है। फरहान ने अपना हाथ बढ़ाकर अनमोल को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा। अनमोल ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। आप अपनी अच्छी हरकतें बंद करके बैठे रहें, अनमोल ने कहा तो फरहान ने आगे होकर इसकी नाक को चूमा। अनमोल में
पल में शर्म से लाल हुई और सर झुकाकर बैठी। ये देख सब ने होटिंग की। मुझे माफ कर दो, तुमने कहा था ना तुम 2 साल तक शादी नहीं करोगी, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए ये सब किया। मुझे माफ कर दो अनमोल। इसने प्यार से अनमोल को देखते हुए कहा और सर झुकाए बैठी थी। मैं आपको माफ कर दूंगी, अगर मेरा दिल करेगा तो आप आराम से बैठे रहें। अनमोल ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। बरहान प्यार से उसे देख रहा था। तुम्हें मुझे माफ करना ही पड़ेगा, वरना जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसने कहते हुए अनमोल के हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाया। अनमोल के हल्की हल्की कांप रही थी। क्या करोगे आप? इसने पूछा। वो घर जाके बताऊंगा तुम्हें। बरहान ने मुस्कुराते हुए कहा और जलान की तरफ देखा। वो संजीदा होकर बैठा था। इसे क्या हुआ? पहले शादी के लिए मरा जा रहा था, अब ऐसे बैठा है जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाया है। बरहान ने इसे देखते हुए दिल में सोचा। जलान परी का हाथ पकड़े इसके साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बात कर रहा था, पर परी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। अब जलान का मूड बिगड़ रहा था। पर तुम मेरे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? जलान ने संजीदे से देखते हुए पूछा, लेकिन फिर भी परी खामोश रही। वो गुस्से से सामने देखने लगा। परी की आंखों में हल्की हल्की नींद चमक रही थी, जिसको छिपाने के लिए नीचे देख रही थी। रुखसती हो चुकी थी। अनमोल बरहान के साथ इसकी घर चली गई थी। इसे ने रुखसत के वक्त एक भी आंसू नहीं बहाया था, बल्कि परी बहुत ज्यादा रोई थी। बेशक वो इसी घर में रहने वाली थी, सिर्फ कमरा चेंज हुआ था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा रोना आता था। इस बात को सोच सोच कर रो रही थी कि जलान किसी उसको पसंद करता है, इससे मजबूरी में शादी कर रहा है। परी को जलान के रूम में बैठाने के बाद सब लड़कियां वहां से चली गई। परी अब भी रोते हुए बैठी थी। जब जलान कमरे में दाखिल हुआ, इसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और आगे बढ़कर इसके पास बेड पर बैठकर इसे देखने लगा। वह घूंघट किए रोई जा रही थी। जब जलान इससे कांपते दिल व जान दे चुका था, वो परेशान हो गई। इसने एकदम परी के चेहरे से घूंघट उठाया। इसे रोता देख इसकी जान पर बन गई। परी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इसने इसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए परेशानी से कहा। आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाले हैं, तो मुझसे शादी क्यों की? परी ने रोते हुए कहा। रो रो के इसकी हालत खराब हो चुकी थी। आंखें लाल और नाक लाल हो चुकी थी, होंठ कांप रहे थे। इसने शिफा का नजरों से जलान की तरफ देखा। वो परेशानी से इसकी तरफ देख रही थी। ये किसने कहा तुमसे? इसने संजीदी से पूछा। आपने इस रात कहा था कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। परी ने सुसु करते हुए ये कहा। जलान ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या समझ लिया तुमने परी? मैं कहने का वो मतलब नहीं था। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा हूँ, मतलब तुमसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ परी, बेइंतहा मोहब्बत। बोलते हो पल में इसका लहजा बदला। वो मैंने हेज नजरों से इसे देख रहा था। परी ने नजर उठा के इसकी आंखों में देखा। रो रो के अपनी प्यारी सी आंखों का क्या हाल कर दिया तुमने परी? जलान ने कहते हुए आगे होकर इसकी आंखों पर लब रखे। परी ने सुकून से अपनी आंखें और जलान का लम्स महसूस किया। इसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ने के बाद जलान ने इसके होठों को देखा। इसके होंठ को पुपा रहे थे। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा जुनून और सब कुछ, सिर्फ तुम हो परी। इसने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। परी पल में शर्म से लाल हुई थी। इसके चेहरे का रंग देख जलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने बेड की साइड टेबल की डोर से एक डब्बी निकाली और उसे खोलकर उसे डायमंड रिंग निकालकर परी के नरम मुलायम हाथों को पकड़कर इसकी उंगली में पहना दी। परी हैरानी से इस रंग को दिख रही थी। ये कितनी प्यारी रिंग है, लेकिन तुमसे कम। जलान ने कहा और उसे बाहों में ले लिया और इसके होंठों को अपने होंठों में लिए इस पर अपने प्यार लुटाने लगा। वो परी को इतना प्यार से छू रहा था कि परी को इस बात पर यकीन ना गया। को सच में इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परी जलान की प्यार की बारिश में भीगती हुई खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। घर पहुंचते ही बरहान ने अनमोल के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। इसके सामने अपना हाथ इसे दिखने लगा। अनमोल ने इसे और इसके हाथ को देखा और उसके हाथ को इग्नोर करते हुए खुद गाड़ी से बाहर आई। बरहान होंठ बुझते देख रहा था। लगते है बीवी तुम ज्यादा ही नाराज हो गई हो, बरहान ने कहते हुए इसे गोद में उठा लिया। छोड़ो मुझे बरहान, तुम अपना गुस्सा छोड़ो। बीवी तो बीवी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अनमोल ने गुस्से से कहा। इसका चेहरा देखकर वो हंसने लगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो घेरा है, तुम गुस्से में हो। बरहान कहते हुए अपने कमरे की तरफ चलने लगा। अनमोल मुंह फुलाए इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। इसने कमरे में जाकर अनमोल को बेड पर बिठाया और अपने सूट की जेब से लॉकेट निकालकर इसकी गले में पहनाया। इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है। अनमोल ने लॉकेट को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बरहान उसे मुस्कुराता देख रहा था। मैंने अपने लिए तुम्हारे नाम का लॉकेट बनवाया। इसने अपने गले में पहने लॉकेट को सामने करके कहा। अनमोल ने हैरानी से देखा। आपने ये कब बनवाया? इसने पूछा। हमारे निकाह के फौरन बाद। बरहान ने कहा। उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अनमोल ने शर्म से नजरें झुका ली। अब मुझे माफ कर दो, मुझे इससे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसने बेबसी से कहा। अनमोल ने नजर उठाकर इसकी आंखों में देखा। मैं आपसे नाराज नहीं, बस थोड़ी सी गुस्सा थी, इसने मासूमियत से कहा। बरहान को इस पर बेइंतहा प्यार आया। इसके होठों पर जुगनी वाला था कि अनमोल ने इसके होठों पर हाथ रखा। मुझे आपके साथ तस्वीरें लेनी है।
انمول نے سنجیدگی سے کہا، تو ہم نے شادی حال میں بھی کھنچوائی تھی۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے ہونٹوں جھکنے لگا۔ نہیں برہان، میں کہہ رہی ہوں نا آپ کے ساتھ سیلفیز لینی ہے۔ انمول نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور یہ سب جس لیے کر رہی تھی؟ برہان اچھے اچھا سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیتے ہیں سیلفیز، برہان نے کہتے ہوئے اپنے موبائل نکال کر کیمرہ آن کرتے ہوئے سامنے کیا اور اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سیلفی لینے لگا۔ انمول نے کیمرے کی طرف ایک نظر دیکھ کر پھر برہان کی طرف دیکھا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان انمول پر۔ اس نے ایک دم اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنے ہونٹ انمول کے ہونٹوں پر رکھتے ہی سیلفی لی۔ انمول کی آنکھیں پھیری، اس نے چہرہ پیچھے کر کے برہان کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا برہان؟ یہ سیلفی تھی جو تم نے میرے ساتھ لینی چاہیے تھی۔ برہان نے مسکراتے اس کی ناک کو چوما۔ برہان، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تنگ نہیں کرتا، جاؤ چینج کرو، اس نے اسے چھوڑ کر کہا۔ وہ فوراً اٹھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دوپٹے کی پنیں اتارنے لگی۔ برہان پیچھے سے اسے مانی ہیز نظر سے دیکھ رہا تھا۔ انمول اپنی پیٹھ پر اس کی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ لانے کے بعد ساری جلی ڈالی، بالوں کے جوڑے کو کھولا، تب جا کر اسے کچھ اچھا محسوس ہوا، لیکن اسے اس لہنگے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، برہان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی ڈور کی طرح اس کی باہوں میں آسمائی۔ برہان خود پیچھے بیڈ پر لیٹ گیا، اسے اپنے اوپر لٹا دیا۔ مجھے جانے دے، میں نے چینج کرنے ہیں، انمول نے معصوم سا منہ بنا کر کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے، پر برہان اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے انمول کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ ویسے میں نے تمہارے کپڑے اتار ہی دینے ہیں، پھر تم اتارنے کی تکلیف کیوں کرنا چاہتی ہو؟ برہان نے بے باکی سے کہا۔ انمول کے چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آپ کتنے بے باک ہیں برہان، انمول نے شرم سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی نرم آواز میں کہا۔ برہان نے پلٹ کر انمول کو بیڈ سے لگا دیا اور خود اس کی پر آ گیا۔ تم اتنی پیاری کیوں انمول کہ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل کرتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں، اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، اور انمول کے بازو کو اپنے گلے میں ڈال کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہی برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ انمول، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تم سے جنون اور عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، تو میرا عشق ہو انمول، اس نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ پھر رات آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ انمول کو اپنے آپ پر رشک آیا کہ برہان نے اس سے کانچ کی گڑیا کی طرح ہاتھ لگایا، کہیں زور سے ہاتھ لگانے سے وہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ وہ ساری رات پیار کی بارش میں بھگو کر اس سے دور ہوا۔ انمول نے ہلکی شرمنگ مسکراہٹ سے برہان کی طرف دیکھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا اور انمول کو اپنے سینے سے لگائے سو گیا۔ دوسرے دن سب لوگ انمول کو ناشتہ دینے گئے۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انمول کب سے دیکھ رہی تھی، حمزہ بار بار عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ انمول پہلے بھی حمزہ اور عائشہ کی شادی کروانا چاہتی تھی، اب اسے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ حمزہ اسے پسند کرتا ہے۔ یہ سچ تھا یا ایسے لگ رہا تھا؟ حمزہ بھائی، آپ عائشہ سے شادی کریں گے؟ انمول نے سب کے سامنے پوچھا۔ حمزہ ایک دم گڑبڑا کے، جواب دو یار، برہان نے پوچھا۔ سب کو ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کر سکتا ہوں، اگر یہ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دے، حمزہ نے سر جھکائے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سنتے ہی انمول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں تنگ نہیں کرے گی، اگر کبھی کرے گی بھی نہ تو میں اسے سیدھا کر سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی حمزہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ انمول کی سپورٹ تھی، اب عائشہ کو وہ خود سیدھا کر سکتا تھا۔ پھر میں شادی کے لیے تیار ہوں، حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ سب مسکرانے لگے۔ انمول نے ترچھی نظروں سے سلان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی بھائی دیکھ لیا آپ نے، جو میں نے کہا تھا وہ میں نے کر دکھایا۔ عائشہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ انمول نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں، وہ بھی اس وجہ سے۔ اچھا میری بات سب لوگ سن لو، حمزہ بھائی اور عائشہ کی شادی کے ساتھ ایک اور جوڑے کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ جوڑا کون ہے بھائی؟ برہان نے حیرانی سے انمول سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ وہ جوڑا ہے عاصم اور دانیہ کا، میں ان دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سن عاصم کا کو خوشی ہوئی، لیکن دانیہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ وہ تو ابھی عدت میں ہے نا، عاصم کی ماں اسفا بیگم نے کہا۔ ہاں تو میں ابھی شادی تھوڑی کروا رہی ہوں، دانیہ کی عدت پوری ہوتے ہی میں ان دونوں کپلز کی شادی کرواؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب اس کے فیصلے سے خوش ہوئے۔ برہان پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب سب خوش تھے کہ ہی امتحانوں کے گزرنے کے بعد اب انہیں خوشیاں ملی تھی۔ انمول کو جو لڑکوں سے نفرت کرتی تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، سے بہت زیادہ پیار کرنے والا شوہر ملا۔ سب کو ان کی منزل مل چکی تھی، جنہوں نے برا کیا تھا ان کے کی سزا ملی تھی، اور جنہوں نے دکھ سے تھے انہیں خوشیاں مل گئی تھی۔ ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ رومانٹک سا ناول جو ہے اس کا ہوا اینڈ۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیو اس طرح کے ناول کے سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے میرے
چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو سبسکرائب کر دیں. اگر اس طرح کی اچھی اچھی اسٹوریز آپ نے دیکھنی ہے سننی ہے تو